this is Manara Chopra, Tollywood and Bollywood star. This is a shout out for Reva Kumar, who is a specialist from the past 35 years in Vastu Shastra. She is an amazing Vastu consultant for home, businesses, offices and corporates. She has just amazing sense where she can actually judge the negative and positive things happening in the building as well as in the human body. This is so amazing, and she has got these amazing remedies where you can actually cure the problem using scientific methods without even considering to demolish the structure. I strongly recommend that you guys should be like consulting her for wealth, happiness, prosperity and whatever questions you have in your head in regard to your future or whatever happening. Specializes in healing spaces with Vastu and living in harmony with earth. So what are you waiting for? Just go and consult Reva Kumar and get rid of all your worries. Vastu is Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Reva Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Reva came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Reva and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग टी विद रेवा कुमार। जी हाँ, बाहर झांक के देखिए, मॉर्निंग इतना ज्यादा सुंदर है आज कि चाय पे चुस्की तो लेना बनता है बॉस। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा कोई मिले जो ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे हमेशा आ जाते हैं और हमेशा हमें बताते हैं कि कैसे हमारी जिंदगी में खुशियों से भर जाए, तो फिर आप हमेशा याद करते हैं अबाउट रेवा कुमार। जी हाँ, शी इज द फाउंडर ऑफ डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस and Research Center, which is now known as World of Divine Vastu. It was conceptualized by Reva ji in 1987 with the aim of spreading the love and light of universal energy. और अभी जो है आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन है, आपको ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? क्योंकि घर में बाहर लोगों के साथ, अपनों के साथ हमेशा प्यार जो है बना के रखना है। और ये सारे की सारी चीजें दिवाली आने के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, राइट? तो चलिए मैं आपको बताऊं कि रेवा जी यानी कि रेवा कुमार इज एन ऑथोरिटी ऑन वास्तु विथ ऑलमोस्ट 34 years of experience with innumerable followers worldwide who have been benefited in the past, and of course their numbers are growing day by day. She is the Vastu consultant for homes, offices, business places and corporates, etc. Or she has a very interesting intuitive personality, and she can sense negative and positive energies in a building, in a structure, in human bodies, and can suggest remedies without demolition using scientific logics only.
तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट मी वेलकम नन अदर देन रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी मॉर्निंग टी। बिनी, हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स वेरी बिल्कुल ऑफ कोर्स मॉर्निंग टी का टाइम है। वेदर भी बहुत अच्छा है, खासकर कैलिफोर्निया में, बे एरिया में। इट्स रियली ब्यूटीफुल वेदर। और ब्यूटीफुल वेदर के साथ में सभी हमारे जितने लिसनर्स हैं वो भी, उनकी फैमिली, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बे एरिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दिस वीकेंड दीपावली, दिवाली का फेस्टिवल, जिसे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, फ्रॉम यंग टू ओल्ड, एवरीबडी, जो हमारा ये कह सकते हैं कि रिचुअल, मैं ये कहूँ कि सिर्फ इंडियन सेलिब्रेट करते हैं, नहीं रिनी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर कोई इस दिन को बहुत अच्छा सेलिब्रेट करता है। रीजन क्या है? स्पिरिचुअली अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, मैथोलॉजिकली देखते हैं कि यस, कि श्री राम वापिस आए, इसलिए क्या अलग अलग तरीके से हर रिलीजन के बीच में कोई ना कोई रीजन से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं आज किसी रिलीजन को लेके नहीं, उसमें बताती हूँ कि जर्नल लाइट्स है, क्यों हम लाइट जलाते हैं, क्यों कैंडल जलाते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ की डार्कनेस को वो दूर करने में हेल्प करता है। लाइफ की डार्कनेस क्या है? जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं जा रहे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं जा रही है, हम अच्छी जॉब करियर नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं जा रहा, अपने देश को छोड़ के, कहते हैं ना कि जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि जहाँ हम आज रहते हैं, रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जिस जगह पे आना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच रहे। इट मीन्स कि दिस ऑल इज डार्कनेस, वी आर रोमिंग इन द डार्कनेस। उसमें हम एक स्पाइडर वेब की तरह उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन दिवाली आती है रोशनी लेके, वो आपको लेके आती है पॉजिटिव एनर्जी के लेने के लिए, कि लाइफ है बहुत ही खूबसूरत है, आप अपने आप को उस डार्कनेस से बाहर लेके आइए, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरती से मनाइए। ये रोशनी आपको आपका विजन दे रही है, ये रोशनी आपका विजन क्लियर कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, और आपको ये कहना चाहती है कि यस इट इज देयर। सुबह आ रही है, ये अंधेरे को आपको खत्म कर रही है, और उसी अंधेरे में जब आप अपनी पूजा की जगह पर बैठते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबके बीच बैठते हैं, तो उस समय उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि दिवाली का एक ही दिन का नहीं है, 5 दिन का ये फेस्टिवल आपको लिसनर्स, आपको पूरा चेंज कर देता है, आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आता है, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपके सोचने के जरिए को चेंज कर, आपके अंदर में एक ताकत लाता है, आपके अंदर में एक पूरी होप लेकर आता है, और तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। और कई बार तो दिवाली पे कुछ हमारे रिलीजन में है कि जो दिवाली से ही नया साल स्टार्ट करते हैं, जो देखते हैं कि हमारा न्यू ईयर कैसे आ रहा है, अगला साल हमारे लिए कैसा है। तो तैयारी हो जाइए, क्योंकि अब ये समय आ गया है जहां से अब लेके आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जनवरी 1 2023 के पास में। लेकिन चाहिए आपकी पॉजिटिव थॉट्स, आप इस डार्कनेस से बाहर आइए, और इसीलिए वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु आपके साथ में जुड़ता है, आपको इस अंधेरे से बाहर लेकर आने में। वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु आपको हेल्प करता है आपकी जिंदगी के एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने की हम प्रेरणा देते हैं, हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जोड़ते हैं। Because once again, the whole universe is based on 5 elements of nature. The same, our body is also made of 5 elements of nature. The way our body needs yoga to get us fit, the same way our dwelling also needs yoga. और वो योगा क्या है? वास्तु है, जहाँ पे आप पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। वाओ, तो आप सभी को अभी पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, और मुझे पता है कि पेपर पेन लेके आप तो रेडी है कि क्या क्या करना है। मैं फिर से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जरूर चेक करें worldofdivinevastu.com, बिकॉज देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट वास्तु इज एंड हाउ रेवा कुमार कैन हेल्प यू रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ एंड योर हाउस एंड योर बिल्डिंग्स।
और पॉजिटिव एनर्जी से आपको भरने वाले हैं रेवा जी। और दिवाली के टाइम पे आई थिंक लाइक शी हैज स्पेशल प्लान्स बिकॉज शी इज कमिंग विथ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कर सके कुछ ऐसा कि इस दिवाली आपके लिए सबसे ज्यादा खुशहाल दिवाली बन जाए। तो रेवा जी आप बताएं कि इस दिवाली में हमें जो जो करना है उसके लिए हम कैसे खुद को प्रिपेयर करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिवाली का हमारा 5 दिन का फेस्टिवल होता है, तो लिस्टर्स जो शो अभी चल रहा है यही रिनी आज इवनिंग में भी करेंगे इसी शो को, ताकि जो लिस्टर्स हमारे मॉर्निंग में नहीं सुन पाए वो शाम को सुन पाए। इसके साथ ही आज हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन, सेकेंड पार्ट विल बी ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे के टाइमिंग्स भी रिनी इज गोइंग टू अनाउंस ताकि आप फ्राइडे को भी सुन सकें। लेकिन उसके बाद में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो येस, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज to take care of you. Yes, that number is 510-868-3338. लेकिन दिवाली का जो है 5 दिन का फेस्टिवल जो स्टार्ट हो रहा है, इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 अक्टूबर। सैटरडे से स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जिस दिन हम कहते हैं कि पहले दिन होता है धनतेरस। दूसरे दिन हमारी होगी छोटी दिवाली, जैसे 23rd, 24th को है बड़ी दिवाली, 25th को देयर इज अन्नपूर्णा का अन्नकूट कहते हैं, 26th को भैया दूज कहते हैं। तो 5 डेज का ये फेस्टिवल होता है। एक बात मैं और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि 25th को सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स है बट इट इज नॉट विजिबल थ्रू ऑल अराउंड अमेरिका। अमेरिका में कहीं विजिबल नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जी हाँ, अगर हमारे इंडिया में कुछ लोग हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं या अगर आपकी फैमिली सुनती है तो उनको 25th को सोलर एक्लिप्स इंडिया में जरूर है, जिसके बीच में जिसको हम कहते हैं कि सूतक होता है, टेम्पल हर चीज बंद होती है, पूजा नहीं कर सकते हैं, वो अपना जो भी 25th का रिचुअल है वो 26 को सेलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन हमारे अमेरिका में, हमारे जहां भी हमारे लिसनर्स यहाँ सुन रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 25th को सोलर एक्लिप्स अमेरिका में कहीं भी विजिबल नहीं है। अब आ जाइए 22nd को, जिस दिन आपको धनतेरस सेलिब्रेट करनी है, धनतेरस। ये 13th डे होता है हमारा, जिस समय हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। खास तौर पे ये दिन बहुत अच्छा होता है अगर आप किसी भी अच्छे काम को तो शुरू करें ही करें, लेकिन आज के दिन अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग मीन्स गोल्ड जरूर लीजिए, सिल्वर ले सकते हैं, कोई भी आइटम ले सकते हैं जो भी आप पूजा की जगह पे रखना चाहते हैं। हर साल पे मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ कि इस साल आप क्या लें, इस साल आप क्या ना लें, लेकिन इस साल मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी पॉकेट है, तो आप डायमंड जरूर लीजिएगा, आपको फायदा ही देगा। या अगर आप चाहें कि नहीं, आप डायमंड नहीं लेना चाहते हैं, तो खास तौर पे आप कॉइन तो लेते ही लेते हैं। अगर आप कॉइन गोल्ड का लीजिए, सिल्वर का लीजिए, दैट्स अप टू यू। लेकिन इस बार खास तौर पे जो डायमंड नहीं लेना चाहते वो सिल्वर का एक छोटा सा बाउल ले लें, जैसे को हम कटोरी बोलते हैं, चांदी का कटोरी, छोटे साइज का ले, बड़े ले, इट्स अप टू यू। उसका क्या रीजन है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि उसकी राय में उससे आपको अपने धनतेरस के दिन की पूजा करनी है। और इस दिन धनतेरस के दिन में जो पूजा की जाती है वो इवनिंग में की जाती है। अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं, जो हम आपको राइट टाइम देंगे। पूजा का समय इसका इवनिंग होता है, प्रदोष काल, जिसको बोलते हैं सन सेटिंग का समय। एंड प्रदोष काल क्या होता है? जब हमारा सन सेट हो रहा है, मून राइज कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं। और इस दिन आपको क्या करना है, अपने घर पे, जैसे कि पहले सुबह मैंने बोला कि आप कुछ परचेजिंग कीजिए, चांदी का चीज लेके आइए, लेकिन जब आप चांदी की कटोरी खरीदते हैं या कोई ग्लास लेते हैं, कटोरी इज द बेस्ट। अगर लेते हैं तो आपको मार्केट से ही उसके अंदर में चावल भर के लाइए, खाली मत लेकर आइए, चावल जरूर से जरूर लेकर आइए, उसके अंदर में भर के आप अपने घर में लेके आए। मीन्स कि आप लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, लक्ष्मी आपके घर पे पूरे भंडार के साथ में आपके साथ भरी आ रही है। इस सैटरडे को आपको नया ब्रूम, झाड़ू जरूर लेना है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी के साथ जुड़ा हुआ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर का कोई झाड़ू पुराना है, टूटा है, कुछ भी है, उसको आप अपने घर से बाहर कर दीजिएगा सैटरडे मॉर्निंग, और सैटरडे को मॉर्निंग में उसको बाहर करके नया झाड़ू लेके आइए और उसको लाकर आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए, कि जो विजिबल ना हो। जब यूज करना हो तो उसको यूज करिए, नहीं तो उसको वहां रहने दीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको लेकर आनी है,
धनतेरस के दिन में साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, बिकॉज धनतेरस, धनिया, धन आ, मतलब कि उससे जुड़ा हुआ है आपके घर में पैसा आए। हर किसी को पैसे की जरूरत है आज के वक्त में, कि हर छोटा बड़ा इंसान, हर कोई, एवरीबडी नीड्स मनी, क्योंकि हम उसके बिना गुजारा नहीं है। आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लग्जरी के लिए, आप किसी नेसेसिटीज के लिए भी लीजिए तो वी नीड मनी। तो धनिया, जिसको हम बोलते हैं धन आ, उस दिन आप जरूर लेके आइए, धनिया लेके, कोरिएंडर सीड्स लेकर आइए। और फोर्थ लेकर आना है आपको फ्रेश सॉल्ट। फ्रेश सॉल्ट मीन्स कि नया सॉल्ट का कंटेनर लीजिए। ये 4 चीजें आप लेके अपने घर में जरूर से जरूर धनतेरस के दिन आइए। अब आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन में धनवंतरी की भी हम लोग पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इस दिन आपको खास तौर पे, जिस समय आप लक्ष्मी जी को अपने स्थान देते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 13 दीपक जलाने हैं। देसी घी के दीपक जलाएंगे, 13 दीपक। अगर आपके लिए हार्ड है 13 दीपक जलाना, क्योंकि हमारे को अपनी सेफ्टी भी देखनी है, हमको प्रिकॉशंस भी लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 13 बाती की एक बाती बना सकते हैं। मीन्स कि चाहे आप कॉटन ले लीजिए, चाहे थ्रेड के ले लीजिए। अगर आप लाल केसर की बाती बनाते हैं, मीन्स कि अगर कॉटन को हर केसर में भिगो देते हैं, अगर आप उसकी बाती बनाते हैं तो दैट्स वेरी गुड। तो अगर आप 13 डिफरेंट अलग अलग दिया नहीं कर सकते तो आप 13 बाती की एक वट बना लीजिए, मतलब कि एक बाती बना लीजिए। उसको आप घी में, जो घी है वो गाय का घी होना चाहिए, उसमें थोड़ा केसर डालिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी का डेंट भी डालिए, ताकि उसका एक रंग हो जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को केसर और घी, गाय का घी, केसर बहुत ही पसंद है, हल्दी वाला रंग बहुत पसंद है। आपको उसी से ही जब 13 बाती की एक बात बना लेंगे तो आप उसका भी जला सकते हैं, और चाहे तो आप 13 दीपक भी जलाएंगे। अब आपको क्या करना है, जिस समय आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप घर में बाउल लेकर आए हैं या ग्लास लेके आए हैं, चावल लेके आए हैं, वही आप चावल का ढेरी रख के उसके ऊपर में लक्ष्मी जी और गणेश जी को वास कराएंगे, मतलब उनके ऊपर में आप लक्ष्मी जी को बिठा रही हैं, ताकि लक्ष्मी आपके घर में, आपके भंडार बने। एंड अक्षय, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्मी चावल को, वो चावल जो होता है वो पैसे से जुड़ा होता है, जिसको हम बहुत मानते हैं। आप उन पे बिठाएं, 13 दीपक या 13 बाती की एक बाती जलाएं, वो आप जलाएंगे। और साथ ही साथ जो चांदी का मैंने आपको बोला है कटोरी लेने के लिए, बर्तन लेने के लिए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पानी भरना है, फ्रेश वाटर। जब फ्रेश वाटर डालेंगे उसी के अंदर ही आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं उसकी खुशबू के लिए, और साथ ही आप उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रख दीजिए। जो चांदी का सिक्का है, अगर वो किसी गणपति भगवान जी या लक्ष्मी जी की फोटो नहीं है तो उससे बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि ये सभी के लिए है। इट्स नथिंग रिलेटेड विथ रिलीजन कि हम नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। गणेश जी वाला रखते हैं तो भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप प्लेन कॉइन रखते हैं चांदी का तो बहुत अच्छा है, उसमें उसको रहने दीजिएगा। और ये आपका धनतेरस से लेके 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th तक ये आपका बॉल वही रहेगा। अब इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। वाटर एलिमेंट है, लक्ष्मी जी उसके अंदर है, मतलब कि हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए, हमारे घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रो, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, हमें रिलेशंस में ग्रोथ में चाहिए, हमें हर चीज में ग्रोथ चाहिए। तो आप उस पानी को वहीं रहने देंगे। 26 के बाद में जब 27 की थर्सडे की मॉर्निंग आएगी, वो जो पानी है उसको आप अपने घर में सब एक प्रसाद समझ के पी लेंगे। और जो कॉइन है उसको परमानेंट आप अपने लॉकर में रखिए या आप अपने पर्स में रखिए। लिसनर्स, अगर आपका ये भी सवाल आता है कि मैं अपने लिए भी करना चाहती हूँ, अपनी सिस्टर के लिए भी करना चाहती हूँ, या अपने ब्रदर के लिए करना चाहती हूँ, या वो नहीं है, या आप एक मदर हैं और आप कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं उनके लिए भी करना चाहती हूँ, तो आप उनके मुताबिक भी उसके अंदर में कॉइन्स रख सकते हैं। बट कॉइन्स हैज टू बी न्यू। जो धनतेरस के दिन आप खरीद के लेकर आएंगे वो कॉइन आप उस पानी उस कटोरी के अंदर में रखेंगे। और जो सॉल्ट आप लेकर आए हैं उस सॉल्ट को आप इमीडिएटली आप अपने किचन के सॉल्ट के साथ में रिप्लेस कर दीजिए। जो पुराना सॉल्ट है उसको अंदर किसी कंटेनर में डाल दीजिए, फ्रेश सॉल्ट को आप डालिए और धनतेरस से ही उसी सॉल्ट को यूज कीजिए जो फ्रेश सॉल्ट लेकर आए हैं।
थर्ड, जो कोरिएंडर सीड्स लेकर आए हैं वो माँ लक्ष्मी के आगे आप जरूर से जरूर रखिए। जब वो कोरिएंडर सीड्स रहेंगे वो भी आपके 26 तक रहेंगे और उसके बाद में उन कोरिएंडर सीड्स को आप एक छोटे से पॉट में आप उसको सीड को लगा भी सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरिएंडर सीड्स बढ़ेंगे, अगर आप इसमें नहीं सर्दियों में लगाना चाहते तो फरवरी में लगा सकते हैं, लेकिन उन कोरिएंडर सीड्स को आप फेंकेंगे नहीं। उसके साथ में अगर आपको लिस्टर्स लगता है कि आपको जॉब का इश्यू है, हमारे को जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, या अगर हमारे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, और यू आर हैविंग किचन इन नॉर्थ ईस्ट और इन नॉर्थ डायरेक्शन, और वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो कोरिएंडर सीड्स आप लक्ष्मी जी के आगे 5 दिन के लिए रखेंगे, वही कोरिएंडर सीड्स आफ्टर 5 डेज आप किसी भी छोटी सी ग्लास की बॉटल में बंद करके जहां आपका किचन है उसके नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी कैबिनेट में छिपा के रख दीजिएगा एंड लेट इट बी देयर फॉर होल ईयर, ताकि वो नॉर्थ से मनी की एनर्जी को वो इनहेंस करे और आपको फायदा हो। वाओ, रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मुझे लगता है कि दीज आर सो मेनी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स, जैसे कि रीवा जी ने कहा, और मुझे पता है कि काफी सारे लिसनर्स ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादातर लिख नहीं पाए या फिर नोट नहीं कर पाए, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज शाम को फिर से ये शो आने वाला है रेडियो जिंदगी पे, तो फिर अगर आप अभी मिस करते हैं तो इवनिंग में आप फिर से इसे सुन सकते हैं। पर फिलहाल वापस आएंगे इसकी तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा टाइम तो नहीं है और बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो रीवा जी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। रीवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन दो, वो ये है कि आपने बताई अबाउट लाइक पीपल जिनको थोड़ा ज्यादा धन चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए, तो इस दिवाली में क्या हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस दिवाली पे जिसके लिए हम फिर जरूर फ्राइडे को करेंगे, और वहां पर आता है कि हम सरस्वती जी की पूजा क्यों करते हैं। सरस्वती जी की पूजा इन्हें इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे को वहां से नॉलेज मिलती है, उनसे हमारे को और ज्यादा से बच्चे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो खास तौर पे इस दिवाली पे जब हम सरस्वती को रखेंगे, दिवाली के दिन में जब उनकी पूजा करेंगे, तो उस समय जो हम उनको प्रसाद देंगे, और वो मैं बताऊंगी कि कौन सा देना है, वो आप बच्चों को खाने के लिए दीजिए। और फिर आप देखिए कि आपके बच्चे कितना अच्छे कंसंट्रेट करते हैं स्टडीज में। इवन कि मैंने रेमेडी में जरूर टिप देना चाहूंगी, बहुत खासकर कई बार रिनी मेरे को पता चलता है कि उनका बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा, सुखला रहा है, या वो उसको साल हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया, लेकिन ही कैन नॉट स्पीक, बोलना चाहता है लेकिन उसकी टंग क्लियर नहीं है, स्पीच उसकी क्लियर नहीं है। खास तौर पे उसके लिए अगर आप दिवाली के दिन में सरस्वती जी के आगे वो रेमेडी करते हैं, मैं लिसनर्स आपको अपनी जिंदगी के खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप करके तो देखें। अगर आप खुद देखेंगे, एक वक्त आएगा कि आप बोलेंगे कि हमारा बच्चा इतना बोलता है कि चुप होने का नाम नहीं लेता, जिसको मैं थोड़ा कम है, उसमें मैं कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ कि धनतेरस के दिन पे आपको, जब आप देखते हैं कि सब आपने पूजा कर लिया, खाना खा लिया, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में आई है और वो 8 रूप में आपके घर में आई हैं, 8 तरफ से भंडारे भरने आई हैं। तो आपको बहुत अच्छी चीजें खाने के लिए उनके लिए रखिए, खीर बनाइए, दूध की बनी चीजें बनाइए, उन्हें सब कीजिए। और उसी दिन ही धनतेरस के दिन 22 के नाइट को आप खास तौर पे करिए नरक चौदस का, जिसको हम दान करते हैं, दीप दान, क्योंकि जितना दीप दान करेंगे, जितना आप दीपक जलाएंगे, उतनी ही रोशनी होगी। तो आपको क्या करना है रेनी जी, ये हमारे लिसनर्स के लिए, जब आप देखते हैं कि अभी घर के सभी फैमिली मेंबर्स आ गए हैं, या आपको भी बाहर नहीं जाना, या आपको किसी ने भी घर नहीं आना, सोने से पहले रात को आप अपने घर के मेन एंट्रेंस डोर के बाहर में आप सरसों के तेल के 2 दीपक जरूर से जरूर जलाइए। लेकिन उसके बाद में आप रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे, अर्ली मॉर्निंग में उठिए आप, और वो दीपक आपको घर के अंदर नहीं लेके आने, घर के दूर ही आपको वो फेंक देना है साउथ की तरफ। जहां आपके घर का साउथ का डायरेक्शन हो, थोड़ा सा कदम बाहर लाइए अपने घर से और साउथ की तरफ दीपक फेंक दीजिए, या फेंकना पॉसिबल नहीं है तो जहां पे भी हमारे को थोड़ा कोई पेड़ मिल रहा है साउथ के पास में, उस दीपक को वहां रख दीजिए, क्योंकि वो आपको नरक दान से, जो आपको कहते हैं ना कि यम दान होता है, जो अकाल मृत्यु से आपका बचाव करता है। 23 को, जिसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली, उस दिन भी आपको, दैट इज अ संडे आ रही है,
उस दिन भी आपको सेम दीपक जलाना है। 22 को हमने 13 वाट का दिया जलाया और फिर हमारे को जिस टाइम 23 को दिवाली है उस दिन 14th डे आता है, उस दिन आप 14 बाती बनाकर 14 बाती का एक दीपक भी जला सकते हैं और चाहें तो 14 बाती का आप अलग अलग भी दीपक जला सकते हैं। और उस रात भी आप बाहर दीपक जरूर रखेंगे। लेकिन 24th को जब आप 23rd की नाइट को, जो संडे की नाइट जब छोटी दिवाली है, उस रात को जब आप दीपक बाहर रखेंगे तो दीपक की जो लो का इट हैज टू बी टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, मतलब आपके मेन एंट्रेंस डोर के बाहर होगी, लेकिन जो दीपक का मुंह होगा वो साउथ की तरफ होगा। साउथ की तरफ इसलिए होगा कि जो हमारे पितृ है या जो यमदान होता है वो उसकी तरफ किया जाता है। और उस दीपक को भी हम मंडे मॉर्निंग जिस दिन दिवाली है उठाकर उसको भी घर से बाहर रख देंगे, घर के अंदर नहीं लेकर आएंगे। आप इसको फॉलो कीजिए, लेकिन जाते जाते मैं एक टिप भी जरूर दूंगी रेनी, या श्योर, गो अहेड। तो फिर जाते जो टिप है धनतेरस के दिन के ऊपर में खास जो टिप दी जाती है वो है आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप ब्लैक प्लीज नहीं पहनेंगे या ब्लू। दिवाली के दिनों में ब्लैक और जो डार्क ब्लू होता है जिसमें ब्लैक थोड़ा शेड होता है उसको आप अवॉइड कीजिए। और खास तौर पे धनतेरस के दिन में आप खीर का भोग जरूर से जरूर लगाइए, उसका आपको बहुत फायदा होता है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, जो हमने, अगर आप चाहें तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार मैंने खास चीजें बनाई हैं दिवाली के ऊपर में, क्योंकि इस दिन से शुरू भी की जाती है कुबेर की पूजा। जब आप लक्ष्मी जी को रखेंगे तो कुबेर जी को जरूर रखिएगा, लेकिन कुबेर जी से भी ऊपर एक और भी है, स्वर्ण आकर्षण भैरवी, जिसकी पिक्चर आप निकाल भी सकते हैं या आप हमें फोन करके हमसे भी ले सकते हैं। इसका क्या रीजन है वो भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। तो इस बार खास तौर पे दिवाली के ऊपर में मैंने एनर्जी के लिए कुछ चीजें बनाई हैं कि जो आप अपने धन पे, अपने पैसे की जगह पे रख सकते हैं, जो आपको हर तरफ से ग्रोथ देगी, विद ऑल हर्ब्स, विद ऑल मैजिकल शेप्स। और खास कर इस बार जो कुबेर की चाबी के साथ में हमने कुछ चीजें बनाई हैं जिसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और टिप के लिए मैं खासकर जाते जाते आपको देना चाहती हूँ, धनतेरस के दिन के लिए टिप है, आज के दिन आपको अपने राइस कंटेनर में, जो आपका चावल का कंटेनर है, उसके अंदर में आपको कॉपर की 5 और 7 पेनीज जरूर से जरूर रखनी है। आज के दिन धनतेरस के दिन में कॉपर की आपको पेनीज रखनी है राइस कंटेनर में। लेट इट बी द होल ईयर। जब भी चावल कमती लेंगे आप उसको और भर दीजिए, उन पेनीज को आप बाहर नहीं निकालेंगे। और साथ ही साथ हनी की बॉटल्स लेके आइए। आपकी नॉर्थ की जहाँ पे भी घर की विंडो है वहां पर विंडो के पास में हनी की बॉटल रखिए, ताकि आपके घर में धन, एक बीज आकर्षण हो। कहते हैं ना कि मधुमक्खी लग जाए तो कैसे एक छत्ता बनाती है, हनी निकलती है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आपके पास में पैसे की ग्रोथ हो, फाइनेंशियली हो, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी हर रूप में आपके घर में वास करे। थैंक यू सो मच रेवा जी, दीज आर अमेजिंग टिप्स। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मैं आपको बताऊं कि आप अगर कोई भी टिप्स मिस कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट रेवा कुमार फॉर एनी ऑफ द वास्तु कंसल्टेशंस। 5108683338 है इनका नंबर। यू कैन ईमेल हर divineavc@gmail.com एंड you can always check worldofdivinevastu.com। वेल, आज शाम को फिर से आप सुन पाएंगे इस शो को, और साथ ही साथ दिस Friday, Reva ji will be live on air and she will share कि तभी दिवाली के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच रेवा जी, आपने इतना कुछ कहा और मुझे पता है एक्चुअली हमारे लिसनर्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए और वो जरूर इसको मानेंगे। अगर कोई भी सवाल हो तो आपसे फिर से वो पूछेंगे। थैंक यू रेनी, थैंक यू लिसनर्स वंस अगेन। है कि हाँ, हम कमिटमेंट कर सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार। और इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। जिए जा। Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances?
Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.